Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel Learning Quest Online. Subject Polity. जैसा कि आप लोगों से बात हुई थी हमारी, जल्दी से हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक को स्टार्ट करने वाले हैं. तो नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी हैव स्टार्टेड primarily polity, and today we will discuss about subordinate court part 1. Why part 1? Because I have split up this topic in four parts. In three parts we will cover concept, and in fourth part we will do MCQ, right? तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ स्टार्ट से अंत तक. तो सबॉर्डिनेट कोर्ट मीन्स द कोर्ट विच वर्क अंडर द अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ अनदर कोर्ट, लोअर इन पोजीशन बाय लॉ. ऐसा कोर्ट जो दूसरी कोर्ट के अंडर में और दूसरी कोर्ट के कंट्रोल में वर्क करता है. इसकी पोजीशन के बारे में बात करें तो ये लोअर इन पोजीशन है. इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, राइट? सो exist under the High Court of country, and it is established as a result of enactment by the state government of India. इसका जो establishment हुआ है वो enactment by the state government of India. नोट कीजिएगा इस पॉइंट को अलग से. enactment by the state government of India, right? It is also known as the lower court. Now background means state judiciary in India. स्टेट जुडिशरी की बात करें तो मैंने जैसे यहाँ बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट के डाउन द लाइन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट. सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में हमने यहाँ पे समझा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट होता क्या है एक्चुअल में. तो बैकग्राउंड, हाई कोर्ट के अंदर हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है. हायरार्की मीन्स सबऑर्डिनेट कोर्ट की, राइट? एंड एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं. हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अलग से सबऑर्डिनेट कोर्ट हो सकता है, और दो डिस्ट्रिक्ट का एक ज्वाइंट सबऑर्डिनेट कोर्ट हो सकता है, डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन एंड जोग्राफिकल सेगमेंट, राइट? It functions below and under the high court at district level and lower level. Subordinate court will work under the high court at district level and lower level. Now in this whole topic, subordinate court, the subordinate court is bifurcated in these 5 parts. Today we will discuss these 2 parts properly. So the constitutional provision is a very important provision for exam point of view. The major questions will cover from this section as well. The constitutional, if I talk about the constitutional provisions it cover under article 233 and article 237 of 4 part of the Constitution of India, right? Why these provisions, why these articles make? Because to regulate the organization of subordinate court and to ensure the independence of from the executive power. These 2 points is very important, and from this slide one question can be framed out, and this is very important. Now we will discuss in detail about the article 232 to article 237. Now under constitutional part, we will discuss about the appointment, position and promotion of judges. Judges means, first we have discussed about the level means high court and hierarchy of the subordinate court. High court, now
The district court appointment can be appointment made by the governor of the India, appointment made by the governor of the state, right, and in consultation with the चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत बहुत ही प्रोबेबिलिटी है, राइट। आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट के जो जज है उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी पोस्टिंग और उनकी प्रमोशन गवर्नर करेंगे स्टेट के इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट, सॉरी नाउ, राइट। तो ऐसे में क्या कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है? नहीं। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है, नंबर 1, द पर्सन not already in service of the state and central level, and the person should have been an advocate or pleader for 7 years, okay, and should be recommended by the high court of for appointment। ये जो एजुकेशन, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये डिस्ट्रिक्ट जज के लिए है। नाउ अदर देन द जज, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो उनकी भी अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करेगा, लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पे, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट से डिस्कस कर इन कंसल्टेशन है, यहाँ पे आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट। ये आर्टिकल 234 में लिखा गया है। दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही प्यारे हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। नाउ अब अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशंस के बाद जो बात आती है, जो ये अपॉइंट हो गया तो इनको कंट्रोल कौन करेंगे? और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। दो कोर्ट की बात करी थी हमने, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट जब हो गया, इनके जजेज अपॉइंट हो गए, तो इनकी ऑपरेशनल थिंग्स को लेके या इनकी अपॉइंटमेंट्स को लेके कौन कंट्रोल करेंगे? द पावर इज वेस्टेड विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास में पावर दी गई है, इंक्लूडिंग द लीव पॉलिसी एंड अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एक्सेट्रा, राइट। सो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बड़े ही अच्छे से मैंने इसको बड़े समराइज फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया है। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। इंटरप्रिटेशन यू कैन से इन अदर लैंग्वेज डेफिनेशन। डेफिनेशन किस किस की? डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर जज। अदर जज की मतलब जो जुडिशरी सर्विस है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करने के बाद में अपॉइंट की जाती है, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। सो जो जुडिशियल सर्विस है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब है जुडिशियल सर्विसेज का। तो डिस्ट्रिक्ट जज में अगर बात करें तो इंटरप्रिटेशन यू कैन से एट अ डेफिनेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूडिंग द जज ऑफ द सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल केस कोर्ट, चीफ पेंडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जस्टिस प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल जज, सेशन जज एंड असिस्टेंट जज। मतलब हायरकी की बात करें तो जो जजेस की हायरकी होती है, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज के डाउन द लाइन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वर्क करता है, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के डाउन द लाइन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज एंड ऑल अदर द जजेस like additional chief presidency district judge, additional district judge and assistant district judge। जो additional district judge और जो district judge होते हैं इनकी ऑलमोस्ट पावर सेम होती है, डिसीजन मेकिंग पावर ऑलमोस्ट सेम होती है, राइट। तो जुडिशियल सर्विस की बात करें तो इट इज एक्सक्लूसिवली ऑफ द पर्सन इंटेंडेड टू फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब जो पर्सन, जो पोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंट है उसको एक्सक्लूसिवली, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी पोस्ट को भरने के लिए जो सर्विस कंडक्ट की जाती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उसको हम जुडिशियल सर्विस में काउंट करते हैं। अदर जुडिशियल सर्विस, सिविल जुडिशियल पोस्ट जो कि इस पोस्ट से नीचे की हैं, इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, वो भी इसी में काउंट हो जाएगी, राइट। तो आगे चलते हैं। ये आपकी आर्टिकल 236 में लिखा गया है, आप नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं है, स्लाइड में रह गया है। 236 में नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द अबव प्रोविजन टू सेंट्रल मजिस्ट्रेट। ये एप्लीकेशन कौन कर सकता है? गवर्नर में डायरेक्ट टू पर्सन,
इन द स्टेट जुडिशियल सर्विस वुड अप्लाई, मतलब गवर्नर डायरेक्ट करेंगे जी कि कौन अप्लाई कर सकता है, राइट। और इट कैन बी एनी क्लास और क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट इन द स्टेट, तो कोई भी क्लास या स्पेसिफाई क्लास ऑफ द स्टेट मजिस्ट्रेट स्टेट हो सकती है इन द स्टेट, राइट। तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी आर्टिकल 237 में है, ये भी रह गया है, लिख लीजिएगा आप, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्निंग क्वेस्ट ऑनलाइन यूपीएससी, राइट। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। नाउ मूव फॉरवर्ड। ये स्पेशल कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बिलो द हाई कोर्ट देर आर द 3 टाइप ऑफ कोर्ट। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेशन कोर्ट, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक सिविल साइड होता है, क्रिमिनल साइड होता है। जो सिविल साइड के केस जो होते हैं वो सिविल डिस्ट्रिक्ट जज डील करते हैं, जो रूल होते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, राइट। और जो क्रिमिनल साइड के केसेज होते हैं, एक्सरसाइज इन द जुडिक्शन ऑफ क्रिमिनल मैटर अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उनको जो डील करते हैं वो सेशन जज करते हैं। नाउ ये पॉइंट है, जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हर एक स्टेट गवर्नमेंट का एक अपना अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग होता है। कभी कभी हो सकता है 2 डिस्ट्रिक्ट का मिला के, सॉरी 2 डिस्ट्रिक्ट का मिला के एक कोर्ट बनाया जा सकता है, राइट। 2 स्टेट का मिला के एक कोर्ट बनाया जा सकता है, और इसको प्रेसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जजेस वो हेड करते हैं, और जो कि अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर से, जो कि हमने पहले बात किया, विद एडवाइस ऑफ द स्टेट चीफ जस्टिस। जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो रोल होता है, द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज टोटली सुपरवाइजरी, राइट। नाउ द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं इनकी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, और इनके पावर जो होती है ये टोटली possessing original and appellate power jurisdiction in the both civil and criminal matter. Now in addition to the district judge, यहाँ तक की बात करी हमने, डिस्ट्रिक्ट जज की बात करी है। अब डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा देर में भी नंबर ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, जो हायर की हमने यहाँ पे बात करी। तो इनकी बात इन एडिशन टू डिस्ट्रिक्ट जज एंड देर में भी नंबर ऑफ बहुत सारे और अलग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की जोग्राफिकल एरिया पे, पॉपुलेशन को कंसर्न करते हुए, तो उसके बेस पे डिसाइड करेंगे, किया जाता है कि कितना नंबर ऑफ जजेस अपॉइंट करें। नाउ मूव फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे बात करी हमने 3 टीयर की, 3 टाइप ऑफ कोर्ट बताए। पहला कोर्ट आपका है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करता है। नाउ बिलो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है, उसकी सिविल साइड के जितने भी केसेस होते हैं वो कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट में डील किए जाते हैं, और जो क्रिमिनल साइड के जितने केस होते हैं, मतलब क्रिमिनल्स मैटर पे जितने भी केस होते हैं, वो आपके कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डील करते हैं। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, दोनों में फर्क है दोस्त। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दोनों में फर्क समझिएगा। यहाँ के क्रिमिनल केस जितने भी डील करते हैं वो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डील करते हैं, और ऐसे क्रिमिनल केसेस में सजा जो होती है पुनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर दोनों हो सकती हैं भैया। और यहाँ पे जो होता है ये 3 साल के लिए हो सकता है। इसका मतलब जो लोवेस्ट लेवल पे के जो कोर्ट हैं, लोवेस्ट लेवल का कोर्ट कौन सा होता है, कोर्ट ऑफ मुंसिफ बोला जाता है इनको, जो सिविल साइड के जो केस लड़ेंगे लोवेस्ट लेवल पे, राइट। और क्रिमिनल साइड के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डील करेंगे क्रिमिनल साइड के केस, राइट। तो इनमें जो कैपिटल पुनिशमेंट का जो प्रोविजन है वो 3 साल तक का है, राइट। तो अप टू 3 इयर्स तक वो आपको पुनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना सकते हैं। यहाँ पे 7 साल है। दोनों ही पॉइंट को आप बड़े ध्यान से नोट कर लीजिएगा, दोनों में ही एक ट्विस्ट है
और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, राइट। तो होप सो आपने नोट कर लिया होगा ये। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पार्ट 1 में हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। तो आपने देखा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके 4 पार्ट्स में हम तो पूरे सबऑर्डिनेट कोड को कवर करेंगे। तो आज हमने ये 2 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं प्रोबेबली, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। दोबारा से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, सेक्शन आर्टिकल 233 से लेके आर्टिकल 237 मेन प्रोविजन है सबऑर्डिनेट कोड के, और इन्हीं में से क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा, एक अलग से कॉपी लगा लीजिएगा अपनी। और कुछ कुछ पार्ट हमने इसका भी डिस्कस कर लिया है, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और लोक अदालत के बारे में हम बात करेंगे। तो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, ये क्या है? ये एक सेपरेट एक्ट के थ्रू इस्टाब्लिश किया गया है। क्यों इस्टाब्लिश किया गया है? टू मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड टू द पुअर। जो पुअर क्लास जो लोग होते हैं, जैसे कि जो लीगल फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बड़े वकीलों की, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का क्या फंक्शन है, क्या पावर है, ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई अगर डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। ना इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपका यहाँ पे स्लाइड में दिया गया है। यूट्यूब चैनल का लिंक आपका यहाँ दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फ्यूचर रियल टाइम नोटिफिकेशन ऑफ द subject specific video, and very soon we will come up with the industrial labor law and accounts subject specific PDF and videos. Now thank you for watching the video. Please like, comment and subscribe. Thank you so much.